वो अंगूर खट्टे हैं वाली बात है। 2006 से बातचीत शुरू की, 7 में लॉन्च की, 13 में छोड़ दी। उनमें तो साहस ही नहीं था, हिम्मत ही नहीं था एग्रीमेंट करने का। डर के मारे यूपीए और कांग्रेस की सरकारें कभी निर्णय नहीं ले पाती थी। और जयराम रमेश जी तो वैसे एंटी डेवलपमेंट माने जाते हैं, आपने देखा ही है। एक पर्यावरण मंत्री के नाते उन्होंने देश का पूरे विकास यात्रा को ठप कर दिया था। तो कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब है। जयराम रमेश जी जैसे मित्र और कांग्रेस जैसी पार्टियां तो भारत को चाइना के साथ एफटीए करने को मजबूर कर रही थी। मैं तो उनको सामने ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने कैसे सोचा भी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आरसेप, जहां चाइना और एफटीए, चाइना और भारत के बीच एक प्रकार से एफटीए हो रहा था, उसमें भारत को झोंकने की हिम्मत कैसे की? ये पाप कैसे कांग्रेस ने किया? This free trade agreement between European Union and India places India at the high table of international geopolitics. Under Prime Minister Narendra Modi's leadership, India has today found recognition and importance across the world. The world sees India as the fastest growing large economy, a country with strong macroeconomic fundamentals, a company growing very rapidly in terms of demand that 1.4 billion people, 140 crore Indians generate. Aspirational young India, full of talent and skills, is today wanted as a trading partner, as a strategic ally by all developed nations across the world. India used to fight shy of such agreements in the past. We used to be very defensive, very worried, and not willing to take on big challenges. Under Prime Minister Narendra Modi, India now aspires to become a developed nation, Viksit Bharat, by 2047. And that is not possible unless we expand our international journey, our international business, our international engagements. And this FTA with 27 European countries, all developed nations, all nations with whom we really have no competition. We complement each other. They have different skill sets and products. We have different skill sets and products. And together, we become a force multiplier. Sir, Europe does not provide irregular subsidies. Those are countries which believe in free trade, but fair trade. And their technologies are usually much superior in terms of innovation and a different set of products. India has strength in its skilled labor, in its talent, and therefore the products and services that they provide are vastly different from what we are able to export. For example, all our labor intensive products, there's a huge market in European Union. Just take textiles for example. Our export to European Union is only 7 billion. They import 253 billion worth of textiles. So we are less than 3%. We used to always hear this story, why Bangladesh exports so much more than us, why Vietnam exports so much more textile than us. It was always because Bangladesh, being a LDC, less developed country, had zero duty. Vietnam had an FTA, so they had zero duty in Europe. We used to pay duty up to 12%. Now that will become zero from day one. All textile products, as soon as the FTA becomes effective, will be zero duty. Now we can compete on an equal footing. And I see no reason why we should not be aspiring to do 30, 40, 50 billion of textile exports, which will create lakhs of jobs in India. Critics are not able to understand that we've been able to extract so many concessions and benefits from the European Union, including the fact that there will be a most forward nation clause. If they give any concessions to any country on carbon tax, we will get it simultaneously. We will also have a technical committee to review the carbon pricing in Europe and in India
and give credit for what carbon taxes are paid in India. The verification process will not have to go to Europe, it will happen in India. And they also recognize that India is rapidly moving up the value chain in terms of green energy and in terms of sustainable manufacturing practices. Recognizing that, they want to support India's efforts to go to decarbonize, to protect the environment, and therefore we have a very holistic agreement which not only safeguards us from any adverse impact of carbon taxes, but in fact promotes joint cooperation to decarbonize our economy. Sir, on the contrary, मेक इन इंडिया को तो इससे बहुत बड़ा बल मिलेगा. मेक इन इंडिया के लिए एक प्रकार से बड़ी मार्केट खुलेगी 27 देशों की, और ऐसी मार्केट जो भारत से 5 गुनी बड़ी है. हमारी $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, उनकी 20 ट्रिलियन से अधिक बड़ी इकोनॉमी है. तो इतनी बड़े बाजार एक प्रकार से भारत के लिए खुलेगा, जिससे हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल का लाभ ले सकेंगे. हमारी क्वालिटी सुधरेगी, भारत के उपभोक्ताओं को भी अच्छी क्वालिटी मिलेगी, सस्ता माल मिलेगा, और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत का माल और भारत की सेवाएं जाएंगी. भारत के ऑटो इंडस्ट्री आज लाजवाब काम कर रही है. इसलिए जो गाड़ियां 25-30 लाख रुपए तक में आज मार्केट में बिकती हैं, उस पर हमने खोली नहीं है मार्केट. तो भारत के मैन्युफैक्चरर्स, भारत के उत्पादन करने वाले सभी ऑटो इंडस्ट्री को हमने प्रोटेक्ट किया है पूरी तरीके से. महंगी गाड़ियां वैसे भी बहुत कम आती है. छोटी बड़ी गाड़ियों का हमने संख्या देखी थी. महंगी जो लग्जरी कार्स है, वो तो शायद 5-6 हजार ही आती है साल में. वो तो भारत में 5,000 गाड़ियां बनने का कोई संभावना नहीं है. उन गाड़ियों को लेकिन अगर हम आने देते हैं और यहां पे थोड़ी भी उनको मार्केट दिखती है, तो आगे चल के वो भी यहां बनेंगी. कि यूरोप के मैन्युफैक्चरर्स भली बात ही समझते हैं कि उनको भारत में ही मैन्युफैक्चर करके ज्यादा मुनाफा है, ज्यादा उनको लाभ होगा, जिससे भारत में नौकरियां भी बनेंगी. तो भारत के उपभोक्ताओं को चॉइस मिलेगी. आज 10 गाड़ियां मिलती है, यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स भी भारत में आके बनाएंगे तो नई नौकरियां उत्पादन होगा. यहां बनी हुई नई गाड़ियां दुनिया भर में एक्सपोर्ट होंगी तो विदेशी मुद्रा कमाएंगे, और भारत के उपभोक्ताओं को भी चॉइस मिलेगी. आस्ते आस्ते अब जब हम अंतर्राष्ट्रीय एग्रीमेंट्स करते हैं विकसित देशों के साथ, तो भारत की सोच एक विकसित देश बनने की तरफ आगे बढ़ती है. भारत के उपभोक्ता अच्छी गुणवत्ता वाला सामान मांगते हैं, तो उससे भारत में जो बनता है सामान, उसकी क्वालिटी भी सुधरती है. तो एक प्रकार से भारत अपने आप को तैयार कर रहा है उपभोक्ताओं को भी संतुष्ट करने का और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना माल बेचने. किसानों को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उल्टे किसानों के लिए मार्केट खुल जाती है. उदाहरण के लिए हमारे चावल, गेहूं, सोया, मेज, मक्का, डेयरी, पूरी तरीके से दूध और दूध उत्पादन को बाहर रखा गया है. इस प्रकार के जो सीरियल्स, जो चीजें, पल्सेस, जो चीजें, दालें, जो चीजें हमें भारत में बनानी है, हमारे किसान मेहनत करते हैं और भारत में उत्पादन करते हैं, उन सबको इसमें से बाहर रखा गया. तो पूरी तरीके से किसानी क्षेत्र को और पशुपालन के क्षेत्र को और एनिमल हस्बेंड्री पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है. 2006 से बातचीत शुरू की, 7 में लॉन्च की, 13 में छोड़ दी. उनमें तो साहस ही नहीं था, हिम्मत ही नहीं था एग्रीमेंट करने का. डर के मारे यूपीए और कांग्रेस की सरकारें कभी निर्णय नहीं ले पाती थी. और जयराम रमेश जी तो वैसे एंटी डेवलपमेंट माने जाते हैं, आपने देखा ही है. एक पर्यावरण मंत्री के नाते उन्होंने देश का पूरे विकास यात्रा को ठप कर दिया था. तो कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब है. जयराम रमेश जी जैसे मित्र और कांग्रेस जैसी पार्टियां तो भारत को चाइना के साथ एफटीए करने को मजबूर कर रही थी. मैं तो उनको सामने ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने कैसे सोचा भी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आरसेप, जहां चाइना और एफटीए, चाइना और भारत के बीच एक प्रकार से एफटीए हो रहा था, उसमें भारत को झोंकने की हिम्मत कैसे की? ये पाप कैसे कांग्रेस ने किया? कांग्रेस ने जवाब देना चाहिए जनता को.
जापान कोरिया के साथ कांग्रेस की सरकार ने एफटीए किया था, वो इतना खराब एफटीए है कि हमारी एक्सपोर्ट वहां पे बढ़ी नहीं है। वहां पे उन्होंने जो सामानों पे हमें ड्यूटी कंसेशन दिया वो वहां जा ही नहीं पा रहे और उनका सामान डबल हो गया, उनका इंपोर्ट डबल हो गया। तो ये एफटीएस भारत ने ज्यादा अपना मार्केट खोली और वहां की मार्केट हमें खुली नहीं है। यहां पे तो आपने देखा होगा 99% जो भारत से एक्सपोर्ट होता है उस सब पे जीरो ड्यूटी हो जाएगी जो भारत से यूरोपियन यूनियन जा रहे हैं। तो हमने एकदम बैलेंस एफटीएस किए। हमने विकसित देशों के साथ एफटीएस भी अपने टर्म्स पे किए, हमारे लाभ के लिए, कैसे हमारे लोगों को सेंसिटिव सेक्टर्स को भी बचाएं और कैसे जो भारत की एक्सपोर्ट इंटरेस्ट है उसको और प्रोत्साहन मिले। लेकिन हम कांग्रेस की तरह उन देशों के साथ एफटीए नहीं कर रहे जो हमारे साथ स्पर्धा करता है। हम ऐसे देशों के साथ नहीं कर रहे जिनकी लेबर कॉस्ट कम है और कल को हमारे मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान हो जाए। कांग्रेस उस प्रकार के देशों के साथ एफटीए करता है। हम विकसित देशों के साथ करते हैं जहां हमारी कोई स्पर्धा नहीं है। भाई, दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग वर्ल्ड इकोनॉमी, आपने ईयू कमीशन के प्रेसिडेंट, ईयू काउंसिल के प्रेसिडेंट के वक्तव्य सुने, कितना उत्साह था उनमें भारत के साथ संबंध सुधारने का। आज 7-8% पे तो दुनिया की कोई और इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है भारत के अलावा। आज पूरे विश्व को भारत के साथ संबंध बढ़ाने के उत्साह है। ये तो मैं मानता हूं एक प्रकार से देश के अंदर ही लोग ऐसे बैठे हुए हैं, राहुल गांधी जी जैसे, जयराम रमेश जी जैसे, जो अपने ही देश को नीचा दिखाते हैं और अपने ही देश की उपलब्धियों को नकारात्मक सोच के साथ देखते हैं। ये नहीं देख पाते हैं कि देश कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकले, कैसे आज देश का युवा युवती उत्साह के साथ नए स्टार्टअप में जॉब क्रिएटर बन रहे हैं, कैसे आज देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा विस्तार हो रहा है। एक तरफ लोगों का जीवन आगे बढ़ रहा है, जीवन सुधर रहा है, आमदनी बढ़ रही है। दूसरी तरफ हमने टैक्सेस कम किए, इनकम टैक्स कम किया, जीएसटी कम किया, लोगों पे भार कम किया, उनको और समृद्ध बनाने के लिए उनके और क्षमता बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, कौशल विकास कर रहे हैं। नई नीतियों से हम नई शिक्षा नीति से लोगों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। ये देश अब तेजी से निकल पड़ा है। कांग्रेस की नकारात्मक सोच अब देश को रोक नहीं पाएगी। वो सोच ने ही इस देश को दशकों तक पिछड़ा रखा। अब भारत का कोई समझदार व्यक्ति कांग्रेस के सोच के झांसे में नहीं आए। हमारी कई जगह बातचीत चल रही है। हमारी चिली में बहुत एडवांस स्टेज पर बातचीत चल रही है, कनाडा से बातचीत चल रही है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बातचीत चल रही है, जीसीसी के खाड़ी के 6 देश मिडिल ईस्ट के, उनसे भी अब बातचीत जल्दी शुरू कर देंगे। तो अलग अलग देशों के साथ हमारी बातचीत चल रही है और भारत जो विकसित देश है, जहां पे हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, जहां पे हमें पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल भी लाभ होता है, उन देशों के साथ अपने संबंध और मजबूत करने में लगा।